Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aksa Islam, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today I will teach you third play from book 3, that is The Oyster and the Pearl, Seep or Moti, by William Sarojan. Characters of the play are Harry Van Dusen, a barber, Clay Larrabee, a boy, Miss McCutcheon, a new school teacher, Clark Larrabee, Clay's father, Mann, a writer, Roxana Larrabee, Clay's sister, Greeley, Clay's friend, Judge Applegarth, a beach comber, Bozak, a watch repairer. First of all, I will give you outline story of the play in few points. The Oyster and the Pearl is a sentimental comedy. It contains humor and a happy ending. It shows faith in the basic goodness of human nature. ये प्ले ह्यूमन इमोशंस से ताल्लुक़ रखता है। इसमें इंसानी एहसासात और सेंटिमेंट्स के बारे में बताया गया है। इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी है, खुशगवार अंजाम है और इंसानी फितरत की बुनियादी नेकी पर को ज़ाहिर करता है। It also shows the author's attitude towards life and people, and he thinks that human beings are fascinating and wonderful, although a little odd at times. ये हमें बताता है कि मुसन्निफ का क्या अंदाज़ फ़िक्र है या वो इंसानों के बारे में क्या सोचता है। उसके ख़्याल में वो बहुत ही पुरकशिश और दिलकश हैं, मगर बाज़ औक़ात इंसान अजीब-ओ-ग़रीब भी हो जाते हैं। The writer wants the reader to enjoy, to relax, and he wants to examine the possibilities of life and the people who play a part in it. इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाला इसको एंजॉय करे, इसके साथ साथ जो इसमें एक अखलाकी सबक भी पाया जाता है। In the opening, we see that there are two persons inside a shop, Harry and Clay is giving a haircut to Harry, and there is a friendship between them also. Harry gives Clay a haircut free of charge, and Clay gives Harry a haircut free of charge. And according to Harry, Clay may turn out to be the man hidden away in the junk of the world who will bring merriment to the tired human heart. स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बार्बर की शॉप है और उसमें क्ले और हैरी मौजूद है। हैरी बार्बर है और क्ले हैरी का हेयर कट कर रहा है और दोनों में फ्रेंडशिप भी है। Then we comes to know about Clay's father. Clay tells us about his father that he has left his home and he has written on the wall, "Enough's enough." He is anxious for his father also and he wants him to come back home. Clay अपने बाप के बारे में बताता है कि उसके माँ बाप की लड़ाई हो गई है। उसके बाद उसके फादर ने घर छोड़ दिया और वो दीवार के ऊपर लिखकर चला जाता है, "Enough is enough." अब क्ले अपने फादर के बारे में एंग्शियस है, वो चाहता है कि वो घर वापस आ जाए। When Clay goes out, a pretty girl with long blonde hair in swimming suit comes into the shop. She looks pretty. She is carrying a colorful parasol. क्ले के जाने के बाद एक लड़की एंटर होती है जिसने एक अम्ब्रेला उठाया हुआ है और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस बताई हुई है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्लॉन्ड हेयर है और स्विमिंग सूट उसने पहना हुआ है। The girl says that she has been in the town for a week. Sometimes she wants to quit and go home to San Francisco. At the same time, she has a feeling that she ought to stay. She seeks Harry's advice. लड़की ये बताती है कि वो नई स्कूल टीचर है और एक कन्फ्लिक्ट का शिकार है। कभी कभार वो सोचती है कि वो ये जगह छोड़कर वापस चली जाए, सैन फ्रांसिस्को में रहना शुरू कर दे, जहाँ पे कि उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सोचती है कि उसको वहीं पर रहना चाहिए। After she has decided to stay, the first thing she has got to do is to change her appearance. लेकिन बाद में ये डिसाइड कर लेती है कि उसे वहीं पर रहना है और वहाँ के बच्चों को पढ़ाना है और पहला काम जो वो करती है कि वो अपनी ज़ाहरी वज़ाकता को तब्दील कर लेती है और वो बिल्कुल सिंपल जो है अपना हुलिया अख्तियार कर लेती है। Then we come to know what is the attitude of children towards that girl who is their teacher. The children don't take her seriously. They think that she is nothing more than a pretty girl who is going to give up in despair and go home. हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों का क्या रवैया है, उनका क्या एटीट्यूड है या वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचते हैं।
वो उसको कभी भी सीरियसली नहीं लेते, ना वो अपनी पढ़ाई के बारे में या करियर्स के बारे में एंक्शियस हैं। उनके ख्याल में वो खूबसूरत लड़की है और कुछ दिनों के बाद वो तंग आकर छोड़कर चली जाएगी। Then a man enters in the shop and he introduces himself as a writer. Harry tells him that there is a lot of stuff for stories and dramas there. He wanted to request him to stay in town for a while. उसके बाद एक आदमी एंटर होता है शॉप में और वो बताता है कि वो राइटर है, कैलिफोर्निया जा रहा है, रास्ते में कुछ देर के लिए रुका है और हेयर कट करवाना चाहता है। हैरी उसको बताता है कि यहाँ पर बहुत सारा मवाद उसको मिल सकता है स्टोरीज के लिए। Then the girl enters in the shop and she is carrying a cane chair without one leg and without its seat. उसके बाद मिस मक्यूचन दोबारा शॉप में एंटर होती है। अब वो बीच से एक टूटी हुई चेयर उठाकर आई है। Clay and children also enters. Clay has something in his hand and he says that this is the oyster. It is shut tight. It is alive. There is a pearl in it and its price would be $300. उसके साथ कुछ बच्चे और क्ले भी एंटर होते हैं। उनके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्ले के हाथ में कुछ है और वो कहता है कि ऑयस्टर है, अभी ये बंद है और अलाइव है और उसके ख्याल में इसके अंदर एक बहुत बड़ा पर्ल है और उसकी कीमत जो है अप्रॉक्सीमेटली $300 है। Then they all left and then Clark Larrabee enters in the shop. He's a fine man. He is a poor person also. We come to know about him that when he could not provide for his 4 children, he feels ashamed and starts drinking. He and his wife wanted their children to live in a house of their own, wear good clothes, and all fine things. When they cannot get these things, they quarrel. बच्चों के जाने के बाद क्लार्क शॉप में एंटर होता है। इससे पहले हम ये उसके बारे में जान चुके हैं कि वो घर छोड़कर जा चुका था। अच्छा इंसान है लेकिन गरीब इंसान है, अपने बच्चों को उनकी ज़रूरियात प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो मियाँ बीवी में लड़ाई होती है और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब वो दोबारा वहाँ शॉप पे आया है हैरी के पास, उसके पास कुछ पैसे हैं और वो हैरी से ये चाहता है कि पैसे वो उसके बेटे तक पहुँचा दे। Then the important thing is the writer knows that there is no pearl in the oyster and he wants to help Clay. He buys the oyster. It means buying the whole thing will bring happiness and prosperity to the poor people. So he says that the whole thing is a pearl. फिर हमें ये पता चलता है कि राइटर ये जानते हुए भी कि ऑयस्टर के अंदर कोई पर्ल नहीं है, वो उसे खरीद लेता है। एक्चुअली वो क्ले की और उसकी फैमिली की मदद करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। Then we come to know that Clark, he was 10 miles up the highway when he happened to see the ad in the newspaper that was given by his son. He decided to come back and stay with his family. Now, in this way, it is a happy ending of the play. उसके बाद हमें पता चलता है कि क्लार्क जब जा रहा होता है तो वो अभी कुछ फासले पर ही गया होता है कि वो न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ लेता है, जो ऐड उसके बेटे की तरफ से दिया गया है। तो वो डिसाइड करता है कि वापस आकर अपनी फैमिली के साथ रहेगा। तो इस तरह से इसकी एक हैप्पी एंडिंग है। It was the outline story of the play. Now I'm reading from the text. It is page number 33. In the start, there is a description about Barber's shop and about his personality. Now it says Harry Van Dusen's barber shop in OK by the Sea, California. Population 909. The sign on the window says Harry Van Dusen Barber. It's an old-fashioned shop crowded with stuff not usually found in barber shops. Harry himself, for instance, he has never been known to put on a barber's white jacket or to work without a hat of some sort on his head. A stovepipe, a derby, a western, a Homburg, a skullcap, a barret, or a straw. As if putting on these various hats somewhat expressed the quality of his soul or suggested the range of it. हैरी वैन ड्यूसन एक बार्बर है। उसकी शॉप एक टाउन में है, ओके बाय द सी, जो कि कैलिफोर्निया में है और जहाँ की पॉपुलेशन 909 है। खिड़की के ऊपर लिखा हुआ है हैरी वैन ड्यूसन हजाम। ये एक पुरानी तर्ज की दुकान है
और ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो कि आम तौर पर बार्बर्स की शॉप में नहीं पाई जाती। जैसा कि हैरी बजाते खुद, वो कभी भी हजाम के सफ़ेद लिबास में नहीं होता और ना ही बगैर किसी हैट के काम करता है। लंबा ट्यूब नुमा हैट, गोल शक्ल का सख्त हैट, मगरबी तर्ज का हैट, नमदे का बना हुआ हैट, कपड़े का सादा हैट या छोटा गोल हैट या तिनकों से बना हुआ हैट, और ऐसे लगता है कि मुख्तलिफ किस्म के हैट्स इसकी रूह की मुख्तलिफ कैफियत की अक्कासी करते हैं। On the walls or shelves are many odds and ends, some apparently washed up by the sea, which is a block down the street. दीवारों पर शेल्फ्स में अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं और ज़ाहिर तौर पर कुछ ऐसी हैं जो कि समंदर की लहरों के जरिए बीच पर आ गईं और वहां से उठाकर उसे रख दी. Abalone and other shells, rocks, pieces of driftwood, a life jacket, rope, sea plants. देयर इज़ एन ओल्ड फैशन चेयर. अब इन चीज़ों में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पुरानी चीज़ें पाई जाती हैं. एक ख़ास किस्म की मछली है एबलॉन, वो है, शेल्स हैं, मुख्तलिफ पत्थर हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, लाइफ जैकेट है, रस्सी है, सी प्लांट्स हैं और एक पुरानी तर्ज की चेयर भी पड़ी हुई है. When the play begins, Harry is seated in the chair. A boy of 9 or 10 named Clark Larrabee is giving him a haircut. हैरी इज रीडिंग अ बुक, वन ऑफ मैनी इन द शॉप. जब प्ले स्टार्ट होता है तो हैरी जो वो चेयर पर बैठा हुआ है और एक लड़का जिसका नाम क्ले है, उसकी एज 9 या 10 साल है, वो उसको हेयर कटिंग उसकी कर रहा है. हैरी जो वो किताब पढ़ रहा है और उसकी शॉप में बहुत सारी किताबों में से एक किताब है जो वो पढ़ रहा है. क्ले, well, I did what you told me, Mr. Van Dusen. I hope it's all right. I'm no barber, though. He begins to comb the hair. क्ले उसको बताता है, जैसे तुमने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया. मेरे ख्याल में अच्छा हेयर कट किया होगा. मैं बार्बर तो नहीं हूँ. उसके बाद उसके बालों में कंघी करना शुरू कर देता है. हैरी, you just gave me a haircut, did not you? तुमने मेरी हेयर कटिंग की क्या ऐसा नहीं? क्ले, I don't know what you'd call it. You want to look at it in the mirror. He holds out a small mirror. मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया. तुम देखना चाहते हो. उसको एक मिरर जो है उसके सामने करता है ताकि उसमें देख सके. हैरी, नो थैंक्स, आई रिमेंबर द लास्ट वन. नहीं शुक्रिया, मुझे याद है आखिरी बार तुमने मेरी कटिंग कैसे की थी. क्ले, आई गेस आई नेवर बी अ बार्बर. मेरा ख्याल है मैं कभी भी बार्बर नहीं बन सकूंगा. हैरी, maybe not. On the other hand, you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world who will bring merriment to the tired human heart. हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि तुम ऐसे शख्स साबित हो जैसा कि गुदड़ी में छुपा हुआ लाल होता है जो मायूस दिलों को खुशियां फराहम करे. क्ले, हु, मी. इस बात पे क्ले हैरान होता है और कहता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं. क्ले, merriment to the tired human heart, how do you do that? मायूस दिलों को खुशियां फराहम करना, तुम ऐसा कैसे करते हो. हैरी, compose a symphony, paint a picture, write a book, invent a philosophy. कोई म्यूजिक कंपोज करो, कोई पिक्चर पेंट करो, कोई किताब लिखो या कोई फिलॉसफी इन्वेंट करो. यानी कि ऐसा करके आप इस तरह कर सकते हैं. क्ले, नॉट मी, डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट. मैं ऐसा नहीं कर सकता. क्या कभी तुमने इस तरह का काम किया है. हैरी, आई डिड, मैंने किया. क्ले, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया. इन्वेंटेड अ फिलॉसफी, मैंने एक फिलॉसफी इन्वेंट की. क्ले, व्हाट्स दैट, वो क्या है. हैरी, अ वे टू लिव, जिंदा रहने का तरीका. क्ले, व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, तुमने कौन सा तरीका इजाद किया. हैरी, द टेक इट ईजी वे, इसे आसान समझो. तो यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि हैरी का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है. व्हाट इज हिज फिलॉसफी, दैट इज टेक इट इजी वे, यानी कि जिंदगी को आसान समझो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और दूसरों को भी आसानियां फराहम करो. Now this was the start of the play. In this part of the play, we come to know about Harry, about the boy Clay, and there's a description about Harry's shop and also about his own personality. Now I'm starting from page number 42.
Clay, I got an oyster here, Mr. Van Dusen. यहाँ पर पेज नंबर 42 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और क्ले जो है वो शॉप में एंटर होता है और आके कहता है कि मिस्टर वैन ड्यूसन मैंने एक ऑयस्टर फाइंड आउट किया है। क्रीले, मिस मक्यूचन क्लेम्स देयर एंट अ बिग पर्ल इन इट। मिस मक्यूचन का ख्याल है कि इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है। हैरी, लुकिंग एट मिस मक्यूचन, इज शी विलिंग टू एडमिट देयर इज अ लिटिल वन इन इट। अब हैरी मिस मक्यूचन को देखते हुए कहता है कि क्या उसके ख्याल में इसमें छोटा पर्ल है। अजराह मजाक को ऐसा करता है। ग्रीले, आई डोंट नो, आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल। अब ग्रीले का कहना है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पास जो बॉटल है इसमें सी वाटर है। मिस मक्यूचन, Mr. Van Dusen clearly seems to believe there is a pearl in the oyster he happens to have found on the beach. Clay, I did not happen to find it. I went looking for it. You know Black Rock, Mr. Van Dusen. Well, the tide hardly ever gets low enough for a fellow to get around to the ocean side of Black Rock, but a little while ago it did. So I went around there to that side. I got to poking around and I found this oyster. अब क्लियर उसको बताता है how he got found that oyster. कि उसने ऑयस्टर जब वहाँ से ढूंढा है कि वो समुद्र के किनारे पे गया, जब लहरें कम हो गई ब्लैक रॉक के करीब, तो वहाँ पर जाके उसने इसको फाइंड आउट किया। उसको बाय चांस नहीं मिला, बट ही हैड फाउंड इट। हैरी, I have been here 24 years, Clay, and this is the first time I've ever heard of anybody finding an oyster on our beach at Black Rock or anywhere else. हैरी उसको बताते हैं कि मुझे 24 years यहाँ पर हो गए हैं, पहली बार मैंने सुना है कि किसने ब्लैक रॉक उसके करीब जो है वहाँ से ऑयस्टर फाइंड आउट किया। Clay, well, I did, Mr. Van Dusen. It's shut tight, it's alive, and there is a pearl in it, worth at least $300. अब क्ले जो है इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं इसके अंदर पर्ल है, उसको बताते हैं कि अलाइव है, ये अभी बंद है और इसके अंदर एक पर्ल है और उसकी जो वैल्यू है वो $300 है। क्रेले अ बिग पर्ल, एक बहुत बड़ा पर्ल। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि उनको एक ऑयस्टर मिला है, क्ले को मिला है वो ऑयस्टर, और वो क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर एक पर्ल है। और हैरी जो है बजाय इसके कि उसको हकीकत से आगाह करे, वो उसकी हौसला अफजाई करता हुआ मालूम होता है कि हाँ शायद इसके अंदर एक पर्ल है। Now I'm reading from page number 48. Clay, there is a big pearl in it. इसके अंदर बहुत बड़ा पर्ल है। Wozak, okay, give me the oyster. I'll open it. Expert watch repairer to open an oyster. Wozak एक और कैरेक्टर है, उसको वहाँ पे बुलवाया गया है ताकि वो उस ऑयस्टर को खोल कर देखे कि क्या उसके अंदर पर्ल है या नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तमाम वाक़े के दौरान राइटर, जिसको कि द मैन कहा गया है, वो शॉप में मौजूद है और वो ये सारी बातें सुन रहा है। हैरी, हाउ मच अ बिग पर्ल वर्थ लुई, एक बड़े पर्ल की क्या वैल्यू हो सकती है। वसैक, ओ 100-200 मे बी, 100 या $200। हैरी, अ वेरी बिग वन, बहुत बड़े की, 3 मे बी, $300 इट मीन्स। द राइटर, I looked at that oyster and I'd like to buy it. To Clay, how much do you want for it? अब राइटर जो है वो ऑयस्टर को देखता है और वो कहता है कि मैंने इसको देखा और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको खरीद लूं। अब इसके लिए तुम मेरे से क्या कीमत लेना चाहते हो। क्ले, आई डोंट नो। अब क्ले जो है वो हैरान भी होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या कीमत है। द राइटर, हाउ अबाउट 300? अब राइटर उसको $300 देने के लिए तैयार है। उससे पूछता है कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। क्ले, $300? वो हैरान होती है, वो कहती है कि $300। क्ले, इज इट ऑल राइट मिस्टर वैन ड्यूसन? हैरी, ही लुक्स एट द राइटर who nods, sure, it's all right. The writer hands Clay the money. Clay, looking at the money and then at the writer, but suppose there ain't a pearl in it. The writer, there is though. Wozak, don't you want to open it first? The writer, no, I want the whole thing. I don't think the pearl stopped growing. Clay, he says there is a pearl in the oyster, Mr. Van Dusen. Harry, I think there is too, Clay. So why don't you just go on home and give the money to your mother? Clay, well, I knew I was going to find something good today. The children go out. Wozak is bewildered. Wozak, $300? How do you know there's a pearl in it? The writer, as far as I am concerned, the whole thing's a pearl. I think this is the most important line in the play. The whole thing's a pearl. अब जहाँ तक हमें ये पता चला है कि राइटर
ने वो ऑयस्टर जो है वो क्ले से ख़रीद लिया है और उसकी कीमत उसको $300 दी है। उसे ये कहा जाता है कि क्या वो इसको खोल कर देखना पसंद नहीं करेगा कि क्या वाकई इसके अंदर पर्ल है या नहीं। तो राइटर ये कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं खोलूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में ये तमाम मामला ही पर्ल है। यानी कि वो उसकी मदद करना चाहता था और दूसरों की मदद करना जो है ये बहुत अहम पॉइंट है और बहुत ही मेन पॉइंट है। हम इसको इसका थीम कह सकते हैं इस प्ले का कि दूसरों की मदद करने में ही इंसान को खुशी मिलती है। Was that a little confused? Well, I got to get back to the shop, Harry. Thanks for coming by. Mosaic goes out. The writer holds the oyster in front of him as if it were an egg and looks at it carefully, turning it in his fingers. As he's doing so, Clark Larrabee comes into the shop. He's holding the copy of the newspaper that Harry gave him. Clark, we were 10 miles up the highway when I happened to see this classified ad in the paper. He hands the paper to Harry and sits down in the chair. I'm going out to the house after all, just for the weekend of the course, then back to work in Salinas again. 2 or 3 months. I think I'll have enough to come back for a long time. Clay came by. Harry, no, I've got the money here. Clark, okay, I'll take it out myself, but first let me have the work, shave, haircut, shampoo message. अब यहाँ पर क्लार्क एंटर होता है, वो बताता है कि वो वापस जा रहा था कि उसने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा जो कि उसके बेटे की तरफ से था, तो उसने ये डिसाइड किया कि वापस आकर अपनी फैमिली के साथ रहेगा. सो दिस इज द एंड ऑफ द प्ले. It was a part A of this play, and next we will do part B. In this part we will do exercise and question answers. Okay, thank you.